Hello everyone, welcome to today's class. Today is the second session of the chapter Theory Base of Accounting, Accounting Standards and IFRS, Class 11, Accountancy. In the last session, we had discussed about the basic accounting assumptions, and in today's session, we'll be discussing about various accounting concepts and principles. To begin with, the basic accounting principles which we are going to use throughout our accountancy are business entity principle, money measurement principle, accounting period principle, full disclosure principle, materiality principle, prudence principle, historical cost principle, matching concept, duality principle, revenue recognition concept, and verifiable objective concepts. Few of the principles and concepts we have also touched upon in our initial sessions when we were discussing basic accounting terms. So let us start with the first accounting principle, that is your business entity concept. According to the principle, business is considered to be a separate and distinct entity from its owners. Accounting is always done from the point of view of business and not its owners. So all the business transactions are recorded from the point of view of the business, not from that of the owner. बेटा ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम बिजनेस को सेपरेट मानते हैं और बिजनेस को जो स्टार्ट करते हैं ओनर्स वो सेपरेट हैं. हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं. बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती हैं. द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, हाउस, कार, पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर of the proprietor का मतलब होता है owner, must be kept separate from the business accounts, and this principle is known as accounting entity और business entity principle. अब बेटा इसके पीछे ना ऑब्जेक्टिव होता है, प्लीज समझ लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव. अगर मैं ओनर के एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस कंसिडर करूंगी तो बिजनेस के एक्सपेंसेस तो ज्यादा हो जाएंगे. अगर ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी बिजनेस में दिखा रहा है तो हम ट्रू प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे. और अगर ओनर की पर्सनल इनकम मैं बिजनेस की इनकम मान लूं तब भी मैं बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट नहीं पता लगा सकती. फाइन. सो दैट इज वाई हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं और इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सेपरेट बनेंगे. The proprietor or owner is treated as a creditor of the business to the extent of capital invested by him in the business. अगर आप recall करो तो हमने ये point discuss किया था when we were discussing internal liability कि owner जो अपना money business में invest करता है in the form of capital, वो ओनर को बिजनेस वापस करता है जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा होता है, बिजनेस खत्म हो रहा होता है. तो एक तरीके से बिजनेस के लिए ओनर भी एक क्रेडिटर है. रीजन भी कि जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट करी है जब बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा तो वो कैपिटल की अमाउंट बिजनेस को ओनर को वापस करनी है. इसीलिए हमने क्या बोला कि ओनर इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस to the extent of capital invested by him, और तभी ये मेरी internal liability भी treat होती है. When the owner brings in some money as capital, it is treated as liability of the business to the owner. Similarly, when he withdraws money from the business for his personal expenses, that is drawings, it is treated as reduction of the owner's capital and consequently a reduction in the liability of the business.
इस पॉइंट में बेटा हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ओनर की ड्राइंग्स हैं, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ओनर ने जो ड्राइंग्स करी हैं वो बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया है। अदरवाइज अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको ड्राइंग्स ट्रीट करने की क्या जरूरत है? उसका अपना पैसा था, वो अपने पैसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है। बट सिंस वी ट्रीट owner as separate legal entity and business as separate legal entity, that is why the amount which is withdrawn by the owner from the business to meet his personal expenses, it is treated as drawings, और drawings बेटा owner की capital business में reduce करती है। Now let's proceed further. The next principle is money measurement principle. Now, according to this principle, only those transactions and events are recorded in the books of accounts which are capable of being expressed in terms of money. हमने ये वाला concept जब हम business transactions term पढ़ रहे थे तब भी थोड़ा सा टच अपॉन किया था। देखिए, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी के टर्म्स में हम जिनको मेजर कर सकते हैं, हम जिनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज 70,000 कैश, रुपीज 70,000 कैश, 2 बिल्डिंग एंड 4 मशीन्स। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक्चुअली में बिजनेस एंटरप्राइज के पास कितने के एसेट्स हैं? ये सारे एसेट्स है ना, कैश भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, मशीन भी एसेट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि बिजनेस एंटरप्राइज के पास कितने वर्थ के एसेट्स हैं? Now see, cash itself is in money terms, rupees 70,000. 2 buildings are there. The worth of those 2 buildings are, let's say, rupees 50 lakhs. And 4 machines are there. The worth of those 4 machines are rupees 2 lakh. So we are going to record the total worth of the assets in the books of accounts of the business as 52 lakh 70,000. We are going to record the worth, टोटल वर्थ ऑफ द एसेट्स। इन सबको क्योंकि हम मनी में मेजर कर सकते थे, दोनों बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख है, दोनों 4 मशीन्स की वैल्यू 2 लाख है, और कैश तो हमेशा कैश के टर्म्स में ही रहता है। तो टोटल वर्थ ऑफ ऑल दी एसेट्स आर 52 लाख 70,000। तो हम इन एसेट्स को, इन आइटम्स को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। These assets cannot be added and shown in the financial assets। अगर मुझे सिर्फ इनको ऐसे लिखना हो, कैश 70,000, 2 बिल्डिंग एंड 4 मशीन्स, मैं इनको अगर ऐड करना चाहूँ और इनकी टोटल वर्थ दिखाना चाहूँ बिना इनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए, मैं इनका टोटल वर्थ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकती, अनलेस they are valued in terms of money and then added up together to know the worth of the business। जैसे कि अभी हमने इसकी वर्किंग करके देखी। अब लेट्स से सी the workers or the employees who are working in the organization, they are very hard working। अब हार्ड वर्क को आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो हम हार्ड वर्किंग वर्कर्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स को, उन्हीं एसेट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में करके देखा। So money is the common denominator in which all the transactions are recorded. I hope that the money measurement principle is clear to all of you. The next principle which we are going to talk about is your accounting period principle. According to this principle, the whole life of the business is split into periodic intervals known as accounting period, so that its performance is measured at regular period. हमने ये वाली
अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डूइंग द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आल्सो, और इसी के बेसिस पर हमने डिस्टिंक्शन किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, which says that business is intended to continue for an indefinite period of time. है ना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि बिजनेस की तो indefinite period of time की लाइफ है, लेकिन अगर मुझे बिजनेस के ट्रू रिजल्ट्स पता करने हैं तो मैं बिजनेस को कंप्लीटली जब वो वाइंड अप होगा, मैं तब तक उसके रिजल्ट्स जानने के लिए वेट नहीं करूंगी. So it means that the true results of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up. But I am not going to wait till such a long period of time. However, ascertainment of profit after a very long period of time will be of little use to the user of financial statement, as they need accounting information at a regular interval for decision making. अब आपका बिजनेस, लेट से आपका बिजनेस ना 70 ईयर्स तक चला, और 70 ईयर्स के बाद अगर आप ये एनालाइज करने बैठे हो कि अब ये देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में हमने अर्न किया या हमने बिजनेस में लूज किया, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा काम की, फ्रूटफुल नहीं होगी. क्योंकि अगर आप उसको टाइमली कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते तो आप टाइमली एक्शन ले भी सकते थे. अब आप स्टूडेंट्स हैं, आपके कंटेक्स्ट में बात करते हैं. देखिए, आपको भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में आपको एवरी मंथली, एवरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपके कुछ 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 एग्जाम्स लेके, लाइक योर क्लास टेस्ट, योर हाफ ईयरलीज, है ना, आपको इवेल्युएट किया जाता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है ये हमें पता चलता रहे, एंड टाइमली एक्शन कैन बी टेकन. So, life of the business is split into periodic intervals, which is known as accounting period. तो हम भी क्या करते हैं, पूरी लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और एक इंटरवल ऑफ टाइम इज अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंट, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना बेटा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आप देखिए, कई सारे तो ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस रिपोर्ट्स बनती हैं, कई में वीकली बेसिस बनती हैं, कई में मंथली बेसिस बनती हैं, कई में क्वार्टरली 3 मंथ्स की एक साथ बनती हैं, हाफ ईयरली 6 मंथ्स के बाद बनती हैं, एंड देन ईयरली. हम वैसे वी आर गोइंग टू हैव एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 1 year, that is 12 month, is usually adopted for this purpose. In India, it is generally started on 1st of April and ends on 31st of March next year. और बेटा प्रपोज्ड है कि अब ये अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के साथ ही, जो हमारा कैलेंडर ईयर है उसके साथ ही क्लब करते हैं, दैट वी शुड स्टार्ट अवर अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1st of January till 31st of December. It is just proposed, but abhi right now we are following in India 1st of April the financial year is starting and ends on 31st of March. At the end of the accounting period, हमने डिस्कस किया था, दो हमारे को स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं. पहला होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं टू नो द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और लॉस सफर्ड. इस स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट, एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर. और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं. Now the next principle is full disclosure principle. According to this principle, the financial statement should completely disclose all significant information relating to the economic affairs of the enterprise. अब एक टर्म देखते हैं ये क्या कह रहा है. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बताया दो होती हैं, इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट. अब दे शुड कंप्लीटली डिस्क्लोज, मतलब इन स्टेटमेंट में हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है, मतलब बताना होता है क्या, ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन
That means all the important information, zaruri information related to the economic affairs of the enterprise. Economic affairs means related to money. जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वी हैव टू डिस्क्लोज देम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीटली. The disclosure can be done either in the financial statements or in the footnotes, like in case of contingent liabilities for notes to accounts in case of, or in notes of accounts in case of companies. See, contingent liability beta, ये टर्म आई है नई. कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि अभी आपकी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, लेकिन अराइज होगी ऑन अ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 पर्सन A, B and C. फाइन, देर आर 3 पर्सन A, B and C. A B को कहता है कि C को आप प्लीज, मेरे पास अभी अमाउंट अवेलेबल नहीं है, आप सी को मेरे कहने से 50,000 रुपीज लेंड कर दो. अगर सी आपको ये अमाउंट टाइमली पे ऑफ नहीं कर पाएगा तो ए कहता है कि मैं कर दूंगा. ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में एक फुट नोट लिखेगा कि अगर सी बी को टाइमली पेमेंट नहीं दे पाया तो मेरी लाइबिलिटी 50,000 की अराइज हो जाएगी और मुझे ये अमाउंट देनी पड़ेगी. अभी तो लाइबिलिटी नहीं है, अराइज होगी कब, जब सी टाइमली पेमेंट बी को नहीं दे पाएगा. तो इसीलिए इस लाइबिलिटी को हम कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं. अ फुल डिस्क्लोजर कहता है ऐसी लाइबिलिटी को भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट दिखाना है कि ये हमारे बिजनेस की कंटीजेंट लाइबिलिटी है. Full disclosure is not only a legal requirement but it also makes a accounting system fair and transparent, है ना. एक तो ये legal requirement है और सब कुछ जो भी important information है जब हम पूरी डिस्क्लोज करते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर बनते हैं, कोई चीटिंग नहीं हो रही एंड दे आर ट्रांसपेरेंट. आई होप दैट दिस full disclosure principle is clear to all of you. So full disclosure says all material facts should be disclosed. As per the Companies Act, every company is required to disclose essential information in the financial statements. जो भी कंपनी की important information है ना, वो कंपनी को बिल्कुल किसी से, अपने इन्वेस्टर्स से, ओनर्स से, गवर्नमेंट से, किसी से हाइड नहीं करनी होती. सारी की सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करके शो करनी होती है. Incomplete information hampers the basic purpose of financial statements. So all the material and relevant facts should be disclosed in the financial statements. Full disclosure ensure that financial statements present a true and fair view of profitability and financial position of the business to its various end users. यानी कि full disclosure अगर हम follow कर रहे हैं तो हम ये श्योरिटी लेके चल रहे हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी हम शो कर रहे हैं, जितने भी हम एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, जो भी अमाउंट हम शो कर रहे हैं, जितने प्रॉफिट्स या लॉसेस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, दे आर ऑल ट्रू एंड फेयर. इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ट्रू और फेयर व्यू हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स का दे रहे हैं. The next principle is materiality principle. According to this principle, all relevant information or items, the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statements should be disclosed in the financial statements. Now let's break this statement and understand what does it mean. ये कहता है बेटा कि इस प्रिंसिपल में कह रहे हैं all relevant items, मतलब रेलिवेंट आइटम का मतलब इंपॉर्टेंट आइटम, जिनकी नॉलेज सबको होनी चाहिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं. अब आप देखो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन होते हैं. एक तो ओनर होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है बिजनेस में. दूसरी आपकी गवर्नमेंट होती है,
है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने टैक्स डिपॉजिट कराना होता है बेस्ड अपॉन दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आपका टैक्स जो है कितना बनेगा वो कैलकुलेट करना होता है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर और यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज योर गवर्नमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं यार हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है कि हमें प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ बोनस हम शेयर कर सकें। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स के डिसीजन को, यूजर्स किसके, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को अफेक्ट करती है, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी चाहिए। अब आप देखो ये वाला प्रिंसिपल जो हमने लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया फुल डिस्क्लोजर, उससे डिफरेंट है। फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो कैसे। As per materiality, only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the user. So this principle is contradictory to the principle of full disclosure. है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कह रहा था सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल कह रहा है कि नहीं, सब करने की जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जिसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है और रेलेवेंट होती है यूजर के लिए। फाइन, तो आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द प्रिंसिपल विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो द आंसर इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। एन आइटम which is significant for one enterprise may be insignificant for other enterprise. For example, tools costing rupees 5,000 is material for a small car workshop. एक छोटी कार वर्कशॉप है, उसके लिए जो टूल्स हैं 5,000 के टूल्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, बट फॉर अ लार्ज एंटरप्राइज लाइक टाटा मोटर्स इट मे बी इनसिग्निफिकेंट। तो टाटा मोटर्स शायद ये 5,000 के टूल्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना दिखाए, लेकिन एक स्मॉल बिजनेस कार वर्कशॉप ओनर में भी ये 5,000 के टूल्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए। So whether an item is material or not will depend on its nature and the amount. This is what materiality principle is. Next principle is prudence or conservatism principle. Now, this principle says that all prospective losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated profits should be ignored. देखिए, हम जो देखो इसका नाम जो है ना इस प्रिंसिपल का, वो कहता है कंजर्वेटिज्म, है ना। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है कि भाई अगर फ्यूचर में मुझे पहले पता है कि लॉस होने वाला है तो मैं उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रख लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा, है ना, तो जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा ना तब तक मैं उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ प्रॉफिट शो नहीं करूंगी। कि लॉस होगा, हाँ, उसके लिए हम पहले प्रोविजन बना लेते हैं, लेकिन जब तक एक्चुअल में प्रॉफिट बिजनेस में रियलाइज ना हो जाए तब तक हम उस प्रॉफिट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन अप करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटी एंड लॉसेस इवन दो देयर अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। देखिए हम एक प्रोविजन ओपन अप करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, हमें अगर लगता है हमारा एक डेटर है और उसने हमें 5,000 रुपीज देने हैं, ठीक है, और वो बार बार पोस्टपोन करे जा रहे, जब भी ड्यू डेट आती है हम कहते हैं कि ठीक है यू पे द अमाउंट, ही सेज ओके गिव मी 1 मंथ मोर, है ना। तो मुझे क्या लगता है कि ये शायद 5,000 रुपीज ये डेटर मुझे नहीं देगा।
तो मैं क्या करती हूँ बेटे, अपने प्रॉफिट्स में से, मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, मैं अपने प्रॉफिट्स में से एक प्रोविजन बना लेती हूँ जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और वो प्रोविजन जो है वो प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो करके ही बनता है, एंड दिस प्रोविजन इज बीइंग मेड फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट टू एंटिसिपेट कि यार फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये मेरा डेटर मुझे पैसे नहीं देगा। देगा तो बहुत अच्छी बात है, हम इस प्रोविजन को प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक कर देंगे। लेकिन अभी ये लग रहा है कि वो नहीं देगा, तो हम पहले से ही, हमें पता है हमारा लॉस होने वाला है, बैड डेट हो जाएंगे, तो हम इसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के रख लेते हैं अंडर द हेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। This is what the example I was talking about. Let's go through it. For example, provision for doubtful debt is made in anticipation of actual bad debt. मुझे लग रहा है ये बैड डेट हो जाएंगे, डेटर मुझे पैसे नहीं देगा, तो मैं प्रॉफिट में से पहले ही उतने अमाउंट का प्रोविजन बना के रख लेती हूँ। Similarly, closing stock is valued at lower of cost and net realizable value. Net realizable value का मतलब होता है market value, whichever is lower. या तो हम cost price पे या हम net realizable value पे आपके क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। हम हायर वैल्यू पे नहीं दिखाते, हम लोअर वैल्यू पे दिखाएंगे। अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक की वैल्यू 5000 है और मार्केट में ये स्टॉक 6000 में सेल ऑफ हो जाएगा, तो मैं 5000 ही वैल्यू दिखाऊंगी। और अगर मेरी 5000 बुक वैल्यू है, लेकिन आज अगर मैं मार्केट में जाके स्टॉक को सेल करती हूँ तो ये मुझे 4000 ही रुपीस देगा, यानी कि इसकी मार्केट वैल्यू 4000 है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को 4000 पे दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होगा बिजनेस में तब तक प्रॉफिट्स को शो नहीं करना। I have to make a provision for the prospective losses, but unless and until profits are realized, I cannot show them in the books of accounts. I hope by these two examples, the prudence concept is clear to all of you. Hope all the principles and concepts which we have discussed in the class is clear to all of you. If you have any query, you can put up your query on the WhatsApp number given at the end of the slide. That's all for today from my side. Thank you very much.